ہمارا ایک نیشنل کوز ہے، یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے۔ اگر ہم اسی طرح زیادتیاں اپنے اوپر برداشت کرتے رہیں گے تو یہ زیادتیاں بڑھتی جائیں گی۔ تو آج ہم اس وقت یہاں پر موجود ہیں تاکہ ہم اپنا پیسفل پروٹیسٹ حکومت پاکستان کو ریکارڈ کروا سکیں اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکیں جن کو ہم جتنی بھی مائنورٹیز اس ملک میں بستی ہیں وہ ان تمام تر جو پرابلمز ہیں ان کو فیس کر رہے ہیں۔ پاسٹر صالح صاحب بات کریں۔ خدا یسوع مسیح کے بابرکت و جلالی نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام۔ آپ سب کے شکر گزار ہیں جو آپ سب یہاں آئے تاکہ ہم سب مل کر احتجاج ریکارڈ کروا سکیں، خاص کر کابلی کی شادی کے خلاف اور فورسڈ کنورژن کے خلاف ہم آج یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ اور آپ سب جتنے یہاں موجود ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور اس وقت پاسٹر منور بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اور بھی جو باتیں کرنی ہوگی شروع کریں گے۔ جی پاسٹر منور اور پاسٹر شوکت آپ کی مہربانی سے آگے آ جائیں، پلیز آگے آ جائیں۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا۔ میں نے کہنا ہے قوما آئیاں جوش وچ 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 ہلیلویا ہلیلویا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اس جگہ پر کس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور نہ صرف یہاں پر بلکہ پورے پاکستان میں آج ہر شہر میں، ہر ملک کے حصے میں، زونز میں آج اس بات کا احتجاج کیا جا رہا ہے کہ کراچی میں ایک مسیحی بیٹی آرزو راجہ کو گھر سے اغوا کیا گیا ہے اور جبراً اس کا مذہب تبدیل کرایا گیا ہے، اور ایک 44 سالہ شخص کے ساتھ ایک 13 سالہ بچی کا نکاح کیا گیا ہے۔ ہم اس فیصلے کے خلاف اور پورے ملک میں احتجاج کر رہے ہیں اور اپنی آواز ایوانوں میں پہنچانا چاہتے ہیں، حکومت تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور ان تمام لوگوں کو جو ریاست مدینہ کے خواب دکھاتے تھے کہ آج ہماری بچیاں پاکستان میں محفوظ رہی ہیں، آج ہماری بچیوں کی عزتیں رل گئی ہیں پاکستان میں، اور آج ان بچیوں کی آبروئیں رونتی گئی ہیں جنہوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور جن کی وجہ سے آج یہ ملک بنا اور تعمیر ہوا۔ آج ان کی بیٹیوں کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے آج جتنی بھی مسیحی برادری ہے اور جتنی بھی ہماری قوم ہے سب سراپا احتجاج ہے، اور پورے ملک میں اس بات کا احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ہمیں افسوس اس بات پر نہیں کہ مسیحی بچی کو اغوا کیا گیا ہے، کیونکہ روز ایسے واقعات ہمیں سنائی دیتے ہیں۔ ہمیں افسوس اس بات پر نہیں کہ جبراً اس کا مذہب تبدیل کرایا گیا ہے۔ آج کتنے مسیحیوں کو جبراً مذہب تبدیل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری بچیوں اور بچوں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، اور مجبوراً انہیں مذہب تبدیل کرنا پڑتا ہے، اور اس ظلم و ستم کی وجہ سے ہمارے بچے، ہماری بچیاں غیر محفوظ ہیں، انہیں پاکستان میں کسی طرح کی کوئی سیکیورٹی موجود نہیں ہے۔ آج میں خاص طور پہ اپنی حکومت کو یہ بتانا چاہتا ہوں، حکومت پاکستان اس بات کی ذمہ دار ہے۔ آج 13 سالہ بچی کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، اور ریپ کروانے کے وہ تمام لوگ ذمہ دار ہیں جو اس فیصلے میں شامل ہیں، جو اس فیصلے میں
कैंप्स में नादरा के ऑफिसर्स को पकड़ा जाए, इन्हें हर तरह की करार वाकई सजा दी जाए। जिन्होंने 13 साला बच्ची को 18 साला बच्ची करार दिया है। और आज हम इसलिए एहतजाज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताकि इस अपनी बेटी आरजू को बाजियाब कराया जा सके। और जो जबरदस्ती मजहब तब्दील करवाकर और जबरदस्ती उसका निकाह पढ़ाया गया है, हम खास तौर पे इसकी मजम्मत करते हैं। हम इसके खिलाफ चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान अपना भरपूर एक्शन ले। और खास तौर पे हुकूमत सिंध, जिनके सामने यह सब कुछ किया जा रहा है, जिनकी आंखों के सामने, जिन्होंने अपनी आंखों पर पट्टियां बांध ली हैं, जिन्होंने अपनी आंखें और अपने कान बंद कर लिए हैं, और वो मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया जो पूरी दुनिया के जुल्म और सितम और बर्बरियत को दुनिया के सामने लाने का दावेदार है, आज मसीहियों के लिए वो तमाम मीडिया खामोश हो गया है। शर्म आनी चाहिए, ऐसे लोगों से शर्म आनी चाहिए। शर्म से दूर बनना चाहिए जिन्होंने हमारे साथ ये सरेआम ज्यादती की है और उसके बावजूद हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। आज पूरे पाकिस्तान में लोग एहतजाज कर रहे हैं, आज पूरे पाकिस्तान में पूरी मसीही कौम सड़कों पर है। और खास तौर पे मैं इस बात को बताता चलूं कि मसीही कौम को ऐसा से कमतरी का शिकार बनाया जा रहा है, हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। एक ऐसी बच्ची जो मासूम बच्ची जिसकी उम्र अभी खिलौनों से खेलने की है, आज उस बच्ची को एक ऐसे शख्स के हवाले किया गया है। और ये गैर कानूनी काम नहीं बल्कि कानूनी बनाकर किया गया है। और इस बात को न सिर्फ सिंध गवर्नमेंट जानती है, इंसानी हुकूक की सब तंजीमें जानती हैं, उनके सामने ये काम किया गया है। हम सिंध हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भरपूर मजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट इसके लिए एक्शन ले और खास तौर पे सिंध गवर्नमेंट इस बच्ची को बाजियाब कराने में अपना किरदार अदा करे, इस बच्ची को वापस दिलाने में अपना किरदार अदा करे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से हमारी दरख्वास्त है, हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हमायती हामी, जिन्होंने उसके लिए कैंपेन चलाई, जिन्होंने उसके लिए वोट दिलाए हैं लोगों से, हम अपनी पार्टी के साथ इस बात का मुतालबा करते हैं, इमरान खान से इस बात का मुतालबा करते हैं। पूरी मसीही कौम ने इमरान खान का इस बात पे, इस विजन पे साथ दिया। उसने कहा कि मैं अक़लियतों के साथ अब ऐसा सलूक नहीं होने दूंगा, मैं अब अक़लियतों की पूरी हिफाजत करूंगा और कोई भी जबरन किसी को मजहब तब्दील करने के लिए नहीं कहेगा। लेकिन उसकी आंखों के सामने आज जबरन एक 13 साला बच्ची को, जो कि अपना कोई फैसला खुद नहीं कर सकती, उस बच्ची को खास तौर पे मजहब तब्दील करने पर जोर दिया गया, जबरदस्ती की गई। और आज एक वीडियो वायरल की जा रही है कि उस बच्ची ने अपना फैसला खुद किया है। ऐसा नहीं हो सकता, 13 साला बच्ची अपना ये डिसीजन नहीं ले सकती है, वो कभी अपना मजहब तब्दील नहीं कर सकती। जिसे अभी अपने मजहब के बारे में पूरा इल्म नहीं है, पूरी वाकफियत नहीं, वो कैसे दूसरे मजहब को कबूल कर सकती है। तो इसलिए हम इस बात की मजम्मत करते हैं और मैं खास तौर पे उन तमाम लोगों को जो इस बात के हामी हैं और हमायत करते हैं, उनसे इस बात का सवाल करता हूं, जिस दीन इस्लाम को मैं जानता हूं, जिस दीन इस्लाम को हम सब मसीही जानते हैं, उस दीन इस्लाम में कोई जबर नहीं है,
कोई जबरदस्ती नहीं है। जिस इस्लाम को हम जानते हैं, ये कौन से ऐसे लोग हैं जो इस मजहब को गलत पेश कर रहे हैं, इसकी तस्वीर गलत पेश कर रहे हैं। आज बहुत सारे इस्लामी भाई हमारे साथ इस बात में मुत्तफिक हैं, वो कहते हैं, इस बात का इकरार करते हैं। ईद मिलादुल नबी में बहुत सारे लोगों ने इस बात का इतराफ किया, मौलाना अशरफी ने इस बात का इकरार किया है कि इस्लाम में जबर और ज्यादती और जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद हमारी 13 साला बच्ची को जबरन उसको मजहब तब्दील कराया गया है। और न सिर्फ ये, और न सिर्फ ये बल्कि उसका निकाह सरेआम किया गया है। अदालत ने उस पर ठप्पा लगा दिया है और अदालत ने इस बात को लीगल बना दिया है, कानूनी बना दिया है। इस बात को अदालत ने साबित कर दिया है कि इस बच्ची का निकाह जायज है, जो कि जायज नहीं है। हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है और हमें हर तरह से ज़दोकोब किया जा रहा है। हमारे लोगों को थ्रेट्स किए जा रहे हैं और खास तौर पे हमारे लोगों को ऐसी रैलियां निकालने और ऐसे जलसे करने पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं ताकि मसीही कौम अपना एहतजाज भी न कर सके। इनका हाल ये है कि मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे। ये मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते, लेकिन मसीही कौम आज पुरजोर इस बात की मजम्मत करती है, हुकूमत से मुतालबा करते हैं। हुकूमत से चंद एक हमारे मुतालबात हैं, सुन लीजिए। और खास तौर पे आज सोशल मीडिया के जरिए और जितने भी यहाँ पे और चैनल्स हमें ज्वाइन किए हुए हैं, हमारे मसीहियों के चंद एक मुतालबात हैं, खुदा ना ये सुने। अगर ये सुनवाई ना हुई तो हम इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के सामने जाकर भूख हड़ताल करेंगे। आज ही जाने के लिए तैयार है। पूरी कौम इस्लामाबाद में जाकर भूख हड़ताल करेगी और तब तक ये भूख हड़ताल जारी रहेगी जब तक इन लोगों ने हमें इंसाफ ना दिया, हमारे मुतालबात पूरे ना किए। हमारा पहला मुतालबा ये है कि 13 साला बच्ची जो कि अगवा की गई है और अगवा करने वाले उस शख्स को और जिसने उसके साथ निकाह किया है, इनको सरेआम फांसी दी जाए। इनको डी चौक में बुलाकर और पूरी दुनिया के मीडिया को बुलाकर इस बात को साबित किया जाए कि पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं की जाती है। डी चौक में इस शख्स को सरेआम फांसी दी जाए जिसने 13 साला बच्ची को घर से अगवा किया और न सिर्फ अगवा किया है बल्कि उसके साथ निकाह भी रचाया है, उसके साथ शादी भी की है। हम इस बात का मुतालबा करते हैं इस शख्स को सरेआम डी चौक में, ताकि पूरी दुनिया वहां पर देखे कि उसे फांसी दी गई है। और नामंजूर। और इसके बाद हमारा जो दूसरा मुतालबा है वो ये है कि ये रेप करवाने वाले जितने जिम्मेदार लोग हैं, जितने इस फैसले में शामिल हैं, जिन्होंने कागज तब्दील किए हैं, जिन्होंने बच्ची की उम्र तब्दील की है, जिन्होंने खास तौर पे ये फैसला दिया है, इनको खास तौर पे करारवा की सजा दी जाए ताकि आइंदा से कोई ऐसा फैसला ना दिया जा सके। और मसीहियों का मुतालबा है, आए दिन जबरन जो मजहब तब्दील करने के लिए मसीही बच्चों को अगवा किया जाता और उसके बाद कहा जाता उन्होंने अपना मजहब तब्दील कर लिया है। उन्होंने कभी हमारे बच्चे
لڑکے کبھی اغوا نہیں ہوئے، ہمارے لڑکے اغوا نہیں ہوتے، ہمارے لڑکوں کو جبرن مذہب تبدیل نہیں کرایا جاتا، ہمارے لڑکوں کی کوئی شادی نہیں کرتا پکڑ کے۔ حیرانی کی بات ہے کہ جبرن ہماری بچیاں اٹھائی جاتی ہیں، اغوا کی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاشرے میں ایک خاص طبقہ ہے جو خاص طور پہ بچیوں کو اغوا کرتا ہے اور بچیوں کو جبرن مذہب تبدیل کرنے کے لیے کہتا ہے، اور جبرن ان لوگوں کے ساتھ شادی رچائی جاتی ہے۔ یہ مسئلہ صرف بچیوں کے ساتھ ہے۔ ہماری خاص طور پہ اپنی گورنمنٹ سے، عمران خان صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے، اپیل ہے، ہم اس بات کے لیے پوری مسیح قوم متحد ہو کر ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بار خاص طور پہ سخت سے سخت قانون بنایا جائے جو جبرن 18 سال سے پہلے نہ کوئی بچی اور نہ کوئی بچہ مذہب تبدیل نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنا فیصلہ لینے کے قابل نہیں ہے۔ اور اسی طور سے کم عمری کی شادی کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کم عمری کی شادی کو سٹاپ کیا جائے، روکا جائے۔ جتنے لوگ اس بات کے حامی ہیں کم عمری کے شادی کے، میں بتا دوں ان کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے، کسی گروہ سے نہیں ہے، کسی پارٹی سے نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس بات کی اپیل کرتے ہیں اور اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ سب اس بات کے لیے متفق ہیں کہ یہ جبرن مذہب کی تبدیلی اور کم عمری کی شادیاں جو ہیں ان کو روکا جائے اور ان کو ہر طرح سے جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ حیرانی اس بات پر ہے، ہم اس لیے آج یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، ایک بچی اگر آپ نادرا میں لے جائیں اس کا آئی ڈی کارڈ آپ نہیں بناتے کہ بچی کی عمر 18 سال کی نہیں ہے، آج آپ نے اس کو نکاح کرنے کے لیے جائز قرار دے دیا ہے کہ یہ بچی نکاح کر سکتی ہے۔ یہ کون سا ایسا قانون ہے، یہ کون سی ایسی حکومت ہے، یہ کون سا ایسا ادارہ ہے جو 13 سال کی بچی کو نکاح کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ آپ کے پاس چلے جائیں، آپ کہیں گے ڈرائیونگ لائسنس نہیں بن سکتا کیونکہ آپ کی عمر 18 سال نہیں ہے۔ اور کون سا قانون ہے، کون سی حکومت ہے، یہ کون سے لوگ ہیں جو 13 سال کی بچی جس کا نہ آئی ڈی کارڈ آپ بنا سکتے ہیں، نہ آپ اس کا ڈرائیونگ لائسنس بنا سکتے ہیں، نہ اس کو ایڈلٹ میں کنسیڈر کرتے ہیں اور نہ ہی اسے خواندہ سمجھتے ہیں، اس کے باوجود آپ لوگوں نے اس کا نکاح کر دیا۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ اور آخری بات کہ ہم اپنے پیارے ملک پاکستان کے ساتھ پوری یکجہتی رکھتے ہیں اور رکھتے رہیں گے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارے ملک میں آپ کو کسی مسیحی کی کوئی مثال نہیں ملے گی کہ وہ غدار نکلا ہے۔ ہم مسیحیوں کی طرف سے کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی۔ جو اپنی دھرتی پہ مر مٹنے والی قوم ہے، یہ وہ قوم ہے جو جہاں کھڑی ہو جائے اس سے ہٹنے والی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، یہ ظلم کیا ہے اور ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے۔ ہم اس بات کے لیے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بچی آرزو کو جلد از جلد بازیاب کرایا جائے اور اس قانون پر نظر ثانی کی جائے اور خاص طور پہ اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ ہمیں کسی طرح کا کوئی کمیشن نہیں چاہیے،
हम हुकूमत सिंध की तरफ से कोई कमीशन बनता हुआ ना देखना चाहते हैं और ना सुनना चाहते हैं, ना JIT चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक ऑर्डर के जरिए इस बच्ची को बाजियाब कराया जाए और उसे अपने माँ बाप के पास वापस लाया जाए ताकि बच्ची सुरखरू हो सके। हमारे साथ यहाँ आपका मेयर साहब भी मौजूद हैं, वो भी 2-3 मिनट में अपने ख्याल का इज़हार करें। भाइयों, आज हम एक खास और बड़े ही मुश्किल वक्त में से गुजर रहे हैं और अभी बासी साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें आपके साथ शेयर की हैं। मैं मसीहियों को जो यीशु मसीह के मानने वाले हैं, इस वक्त हम सरापा एहतजाज हैं बच्ची आरजू के लिए, जिसको जबरी मजहब चेंज करवाया गया, जबरी शादी की गई और इसके खिलाफ आज हम सरापा एहतजाज हैं। लेकिन मैं वक्त के हाकिमों को और इन जबर करने वालों को मसीहियों की तरफ से एक पैगाम देना चाहता हूं कि जो आटा तुम खाते हो हम भी वही खाते हैं। अगर आज हमारी कौम सोई हुई है लेकिन मरी नहीं है, हम मरे हुए ना समझे हमें, हम भी वैसी ही खून की गर्मी रखते हैं। लेकिन हमारे यीशु ने हमें सिखाया है कि हर बात को मोहब्बत से और प्यार से और हर तरह से तमीज के साथ हर काम किया जाए। सो आज हम सिर्फ और सिर्फ पुरअमन एहतजाज के साथ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि हमें मसीही कौम होते हुए इस बड़े अलमिया से क्यों दो चार होना पड़ता है, क्योंकि कानून तो है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। वक्त की हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि कानून को अमल में लाने के लिए एफर्ट्स की जाए ताकि गरीब और अकलीतों पर जो जुल्म ढाए जाते हैं वो आइंदा ना ढाए जाए। और इसके साथ साथ हम हुकूमत वक्त से ये भी उम्मीद करते हैं कि इन एहतजाजात की वजह से जल्द आरजू राजा आजाद होकर अपनी फैमिली और अपने घर वालों के साथ रहेगी। सो हम सब अपने मुल्क वतन के बड़े ही कबूल वतन है, पेट्रियाटिक जज्बात रखते हैं। सो हम अपने मुल्क के खैर ख्वाह हैं, लेकिन अगर यहाँ पर हमें इस किस्म की ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करना पड़ती है तो इसका तदारक भी आला हुकूमतों ने ही करना है। तो हम अपील करते हैं कि अक़लियतों के साथ होने वाले तमाम मसाइल रोके जाएं और इस मसले का हल जल्द से जल्द निकाला जाए। थैंक यू सो मच। एक 2 मिनट में अपने ख्याल के साथ करें। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, आज हम एक कौम की सूरत में खड़े हुए, हम यूनाइटेड सारे, हम एक कौम की सूरत में अपनी पिटीशन खुदा के सामने भी रखते हैं और वक्त के हाकिमों के सामने, और इस मुल्क में ये हम दोबारा नहीं होने देंगे। अगर आप बिलीव करते हैं तो आमीन कहिए। हम इस मुल्क में इन वाक़यात को रिपीट नहीं होने देंगे, हम इसको इंतहाई सीरियस लेते हैं और ये दोबारा हमारी बेटियों के साथ वाक़या नहीं होगा। और अगर हम भी कौम इकट्ठे हो गए तो हम कुछ नहीं कर सकते। कौमें जब मूवमेंट बनाती हैं इस तरह की तो वो अपने मकासद को हासिल कर सकती हैं। हम भी कौम, खुदा ने हमें इस मुल्क में मकसद तरीके से रखा है, ये मुल्क हमारा है। अगर हमारे साथ जबर होगा तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। खुदा ने हमें अक्ल भी दिया, सोच भी दिया और कुव्वत भी दी। हम कोई इस मुल्क में गरीब लोग नहीं है।
खुदा ने हमें अलग कौम बनाया है, हम अपना मकसद हासिल कर सकते हैं, हम अपना हक ले सकते हैं इनसे। मुसलमानों को मैं कहना चाहता हूँ, तुम हमारे भाई हो, अगर हमारी कौम के सामने इस तरह तुम खड़े हुए तो हम इसको अच्छी तरह टैकल करना जानते हैं। कुव्वत दे रखी है इसकी, हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें एक कौम बनने की जरूरत है। जब कौमें अपना फैसला करती है, खुदा उसी को इंडोर्स करता है। जब कौमें इकट्ठी होकर फैसला करती है, आज फैसले का दिन है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ खुदा के खादिम के लिए जिन्होंने हमें इस मूवमेंट में शामिल किया, ताकि हम एक आवाज बने, हम सारे एक आवाज बनेंगे। ये आवाज बड़ी पावरफुल है, ये गूंजती आसमानों की तरफ भी जाती है और जमीन पर रहने वाले हुक्मरानों के दिलों को भी जाकर छूती है। ये हिला सकती है। हम इकट्ठे होंगे, हम अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। आज हम यूनाइट होकर इस लड़की के लिए खड़े हैं। मैं ईमान रखता हूँ, अगर चर्च इस तरह यूनाइट हुआ तो हम इस मुल्क का कसीर हिस्सा ले लेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हम इस मुल्क में आ गए, ये मुल्क हमारा है, हम अपने राइट्स हर सूरत में लेंगे। खुदा के फजल से बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। Praise the Lord. Thank you so much भाई आशिर और आप भाई इमरान, मास्टर इमरान बशीर भी हमारे साथ अपने ख्याल के साथ। बहुत शुक्रिया। मैं बस 2 मिनट में छोटी सी बात आप सबसे करना चाहता हूँ। आज आपका यहाँ आना, यहाँ मौजूद होना इस बात की निशानी है, और आज ये बात रकम हो गई कि आप सब मुत्तहिद कौम हैं और जिंदा कौम, क्योंकि जिंदा कौमें ही जवाब देती है, जिंदा कौमें ही खड़ी होती हैं। जितने यहाँ भाई मौजूद हैं, जितनी जिंदगियां मौजूद हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, अपनी कौम के लिए जब आप मुत्तहिद हो जाएंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर कोई हमें दबाए या प्रेशराइज करे। खास तौर पर हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं इस बात का कि वो इस आरजू राजा के केस को जल्द अज जल्द सॉर्ट आउट करे और उसे बाजियाब कराए। लेकिन हम सब के लिए इस वाकया में से एक बात बड़ी सीखने की है कि अब वो वक्त आ गया है कि हमें मुत्तहिद होना है, हमें इकट्ठे होकर काम करना है। हम किसी भी जगह पर, किसी इदारे में, किसी जगह पर अगर मुत्तहिद हो जाएंगे तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो बराए मेहरबानी अपने अपने चर्चिस के अंदर अपनी अपनी कम्युनिटी और नौजवानों में इस बात की तहरीक पैदा करें कि आप सब कुछ कर सकते हैं अगर आप में इत्तेहाद हो, और हम सब मिलकर इसी एक बात के लिए दुआ गो भी हैं और शुक्रगुजार हैं इस सारी खादमीन की टीम का जिन्होंने इस सारे इत्तेहाद को किया है, जमा किया है और इस बड़े काम में आगे लगे। खुदावंद के नाम को जलाल दे। बोलो खुदावंद यीशु मसीह नाम की जय, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। थैंक यू सो मच मास्टर इमरान बशीर। अभी थोड़ी देर में हम दुआ भी करेंगे और फिर दुआ के साथ हम रुखसत होंगे। अजीजों, हमारा मसीहा हमें मोहब्बत की, सुलह और सलामती की तरकीब देता है। इसी सबब से हम पूरा वे में आज ये एहतजाज कर रहे हैं। हम इसी से भी हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ जो हमारे राइट्स है, हमारे हुकूक है, उनके लिए हम खड़े हैं, और इसी तरह से बहुत से मुसलमान भाई भी हमारा साथ दे रहे हैं और हम उनके शुक्रगुजार हैं। और जैसा कि आगे बड़ी ज़बरदस्त स्पीच मास्टर मुनव्वर ने की है, इसी तरह से हम सब यूनाइट हैं और खासकर जो जबरन मजहब की तब्दीली है उसके खिलाफ आज हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और इसी तरह से कम उम्री में शादी, इसको भी हम कंडेम करते हैं, क्योंकि ये किसी भी मजहब में, किसी भी जो मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनके लिए ये ठीक बात नहीं है। तो इसलिए हम सब आज मुत्तफिक हैं और हम यूनाइट हैं ताकि सुलह सलामती के साथ और खुदा की मोहब्बत के साथ इस सारे मसले को हल किया जाए।
ہم کسی طرح سے بھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے اور نہ ہی ہم یہ الاؤ بھی کریں گے کہ کوئی ہماری بیٹیوں کو اور کم عمر بچوں کو نقصان پہنچائے. اور اسی لیے آج ہم سب یونائٹ ہیں اور ہم سب ایک آواز کر کے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم خدا کے شکر گزار ہیں خدا کی خدام کے لیے جو آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے اور آپ سب کے لیے بھی جو یہاں موجود ہے. اب ہم ایک دعا کریں گے نہ صرف آرزو اور اس کے خاندان کے انصاف کے لیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم ملک کی سلامتی کے لیے بھی دعا کریں گے. آمین. پاکستان پاکستان. تو آئیں عزیزو ہم دعا کریں. خدا باپ ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیری اس محبت کے لیے جو تو نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے کہ ہم دوسروں سے اپنی مانند محبت رکھیں. خدا میری منت ہے کہ ملک پاکستان سے نفرت جاتی رہے اور ہر طرح کی جو دہشت گردی ہے وہ ختم ہو تاکہ خداوند یہاں ہر شہری آزادی کے ساتھ اور پورے انصاف کے ساتھ اس ملک میں زندگی بسر کرے. اور آج خداوند جب کہ ہم یہاں اکٹھے ہیں آرزو اور اس کے خاندان کے انصاف کے لیے تو خداوند منت ہے کہ انہیں انصاف ملے. اور اسی طرح سے جو ہم یہ آواز کم عمری میں شادی کے خلاف اٹھا رہے ہیں اور جبرن مذہب کی تبدیلی کے خلاف اٹھا رہے ہیں تو خداوند اس کے تعلق سے ہماری حکومت اور خداوند ہمارے وزیر اعظم صاحب اور اسی طرح سے تمام جو لیڈرز ہیں اداروں کے لیڈرز ہیں اس بار فوری ایکشن لیا جائے اور خداوند تو ان کو اپنا خوف دے دے اپنی حکمت دے دے تاکہ بڑی حکمت کے ساتھ ان تمام معاملات کو سلجھایا جائے تاکہ ہر اقلیت یہاں محفوظ فیل کرے محافظت میں. اور خداوند ہم یہ جانتے ہیں کہ تو ہمارا محافظ ہے لیکن خداوند اب یہ محنت ہے کہ ہماری حکومت اور ہر طرح کے جو ہمارے سیکورٹی فورسز ہیں وہ ہر طرح سے اقلیتوں کا ساتھ دے اور خداوند اس ملک میں امن صلح سلامتی اور محبت راج کرے مسیح کے نام میں آمین آمین آمین. پاکستان پاکستان کم عمری کی شادی شکرن مذہب کی تبدیلی Praise the Lord. تو اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ آپ بڑے اطمینان کے ساتھ اور بڑے ہی پرامن طریقے سے واپس اپنے اپنے گھروں کو جائیں اور کسی طرح سے کوئی افراتفری نہ ہو اور یہی ہم سب کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے. آمین آمین. پاکستان زندہ باد. Praise the Lord. ایک دفعہ ہم